Good morning to you all. Am I audible? Yes, sir. Good morning, sir. Okay. So let your other friends to join. So तब तक हम देखते हैं लास्ट डे जो हमने देखा था. So let me share the PDF of questions. Okay. So we have gone through these questions in the last class. So यहाँ पर कुछ concepts हैं जिसे review करना चाहता हूँ. Okay. So just let me. Okay. So यहाँ पर कुछ concepts हैं जिनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. So subtraction of a binary number, subtraction of binary numbers using 2's complement. Okay. So इसमें छोटा सा concept क्या है? Okay. So let me share the whiteboard also. So what we do in 2's complement method, complement method of binary arithmetic. Okay. So 2's complement method of binary arithmetic में actually हम करते क्या हैं? If we have to add two numbers like a number A and a number B, and we have to add this, like we have to add A with minus B. Okay. So we have to add A minus B, or we can tell it as add A minus B, मतलब A और minus B को add करना है, या in other language we can say that subtract B from A. Okay. So इसे ही हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं. So what is the method for this? तो यहाँ पर जिसे सब्सट्रैक्ट करना होता है, जैसे B को सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर स्टेप क्या होता है? We are taking the 2's complement of B. तो B का जब किसी भी नंबर का जब हम 2's complement लिखते हैं, देन उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव नंबर से. अगर B का 2's complement लिख रहे हैं, देन इट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनस B. ओके. लाइक ऐसे जैसे कोई नंबर ले, या चलो हम एक एग्जांपल ही देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन. ओके. उसके बाद क्या करते हैं, ये जो 2's complement है, इस 2's complement को हम ऐड करते हैं, A के साथ ऐड करते हैं. क्या? 2's complement of B. इन दोनों को हम ऐड करते हैं. जो भी रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट का हम MSB देखते हैं. ओके. रिजल्ट का MSB देखते हैं. अगर MSB 0 है, इसका मतलब क्या है? रिजल्ट इज पॉजिटिव.
और अगर MSB 1 है, इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट इज नेगेटिव एंड is in its 2's complement form. 2's complement form. Okay. तो अगर यहाँ पर कोई कैरी बीट आता है, so what we do in 2's complement? Discard the carry. Okay. इन 2's complement मेथड में अगर कैरी आता है तो कैरी को डिस्कार्ड करते हैं एंड वी सी दी MSB बिट. अगर MSB बिट पॉजिटिव है तो रिजल्ट अपने ट्रू बाइनरी फॉर्म में है. ओके, रिजल्ट इज पॉजिटिव इन ट्रू बाइनरी फॉर्म. ट्रू बाइनरी फॉर्म. ओके, so this is the way we can we do this. Okay, now let us see the question. As the question, we have seen these questions. Okay, so यहाँ पर एक चीज और रिपीट करना चाहता हूँ. Okay, let us do that after this question. So we are taking this question. We have taken this question number 11. Okay, so are you able to see this question number 11? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the question is this question number 11. So the question is, here X is given and Y is given are two 5-bit binary numbers represented in 2's complement format. Okay, so these numbers are already represented in 2's complement format. The sum of X and Y represented in 2's complement format using 6 bits is. So result जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर ये 5 बिट में डाटा दिया हुआ है तो द डाटा should be or the result should be in 5 digits only. So based upon the result, अगर result का MSB 0 हुआ तो उसे हम MSB को कंटिन्यू कर देंगे 0 के साथ, और अगर MSB बिट अगर 1 है तो उसे 1 के साथ कंटिन्यू कर देंगे. तो यहाँ पर X and Y both are written in 2's complement form. So what I have discussed just now in the whiteboard, that जब 2's complement मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, we take the 2's complement of the negative number. Okay, और पॉजिटिव नंबर जो है उस पॉजिटिव नंबर को हम 2's complement में as it is ही रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर X और Y ऑलरेडी 2's complement में दिया गया है. ओके, और मैंने क्या कहा कि MSB बिट हम देखते हैं, MSB बिट. ओके, सो यहाँ से ये दिख रहा है दैट दिस MSB बिट इज 0, सो इट इज 1. Sorry, this is 0 means a positive number. Okay, and 1 means negative number. Negative. Okay, so अभी यहाँ पर हमारे पास जो भी numbers है, these are already represented in 2's complement. So we have to find out the result. So अगर 2's complement फॉर्म में नहीं दिया होता तो हम पहले 2's complement में कन्वर्ट करते और उसके बाद एडिशन करते. तो यहाँ पे ऑलरेडी 2's complement में दिया हुआ है, so we will add X and Y. Okay, so 0 1 1 1 0 and 1 1 0 0 1. So we can directly add these two numbers as these are already given in 2's complement form. So 0 1 1 1, this is also 1 1 1, it is 0, carry 1 1 1 0 and carry 1. Okay, so what I have told earlier, that in 2's complement method, if a carry generates, then we can discard that carry. Okay, so this is the carry bit, so this can be discarded. Discard this carry bit, and the result whatever we have,
is the M positive, sir. यहाँ पर हम जो रिजल्ट देख रहे हैं, this result is 0. So and what we have to do, we have to represent the result in 2's complement format using 6 bits only. So जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट हमारा 5 बिट्स में है, तो 0 0 1 1 1 जो रिजल्ट है यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे, तो देन वी विल हैव अ 6 बिट नंबर. अगर MSB में यहाँ 1 होता तो हम 1 को कंटिन्यू करते. ओके, जैसे यहाँ पर 0 0 था, लास्ट MSB 0 था तो हमने यहाँ पर 0 रखा. अगर यहाँ पर MSB 1 होता देन द 6th बिट जो हम लोग देते वो 1 होता. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने कल देखा था, यहाँ पर एक क्वेश्चन था रेंज ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट या 1's कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कुछ था. यस, द क्वेश्चन नंबर 17. ओके, सो यहाँ के लिए एक फॉर्म आपको याद रखना है, द रेंज ऑफ 1's and 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर. ओके, सो I think I have shown that, but today also I want to repeat that. The range of signed decimal numbers that can be represented by 6 bits 1's complement number. तो अगर हमारे पास n बिट नंबर है, ओके, अगर n बिट नंबर है तो उसका रेंज जो होगा 1's complement फॉर्मेट में, 1's complement फॉर्मेट में जो नंबर का रेंज होगा that will be -2 to the power n minus 1 to plus 2 to the power n minus 1. ओके, तो अगर हमारे पास n बिट नंबर है, इन दैट केस उस नंबर को 1's कॉम्प्लीमेंट का रेंज अगर बताना होगा देन वी विल हैव दिस रेंज. ये याद रखना होगा आप लोगों को, ये अक्सर एग्जाम में आता है. So 2 to the power n minus 1 2 plus 2 to the power n minus 1. So this is the case for 1's complement. अगर 2's complement का रेंज बताना हो तो for that the formula is, or the range is minus 2 to the power n minus 1 2 plus 2 to the power n minus 1. Okay, so this is for 2's complement. अगर कोई नंबर ऑफ डिजिट्स दिया हो या नंबर ऑफ बिट्स दिया हो, फॉर दैट केस वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर, देन दिस विल बी द रेंज फॉर द 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर. मतलब यहाँ से यहाँ तक. जैसे अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वहाँ पर 6 बिट नंबर है, 6 बिट का नंबर है, 6 बिट का नंबर है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इट शुड बी 6 बिट का मतलब है 2 to the power n minus 1, दैट इज 2 to the power n minus 1. क्वेश्चन नंबर बोलिए. हाँ, तो बताया था आपको. ओके, पर इसका फिर ये होगा सर. अच्छा, तो देख ले यहाँ पर 2 to the power n minus 1 है, तो n is equal to 6 है, मीन्स n is equal to 6 है. इसका मतलब क्या? 2 to the power 6 minus 1 मतलब 5 minus 1 minus 2, कहाँ तक? 2 to the power 5 minus 1, और ये इसका साइन क्या होगा? प्लस. तो द आंसर plus 31. yes, 2 to the power 5 में 2 to the power 5 means 32. 32 minus 1, that is 31. So minus 31 to plus 30. Plus 31. Okay, so this should be the answer. Okay, so this is the formula which you have to remember. Okay, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है और बहुत सारे competitions में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. Okay, so let us move further because we have already discussed all these things, all these questions in the last class. So let us move to the next question. Okay, so we have a question, question number 12. In question number 12, what you can see that the two numbers represented in signed 2's complement form. Okay, so these numbers P and Q are already given in
2's complement form. Okay, so if Q is subtracted from P, then the value in the signed 2's complement number is. So the two numbers represented in 2's binary form. Okay, 2's complement form. So यहाँ पर हमें अभी क्या दिख रहा है, ये यहाँ भी 1 है और ये यहाँ भी 1 है. Okay, So both are negative number. both are negative representation, but अगर यहाँ पर 1 है और हमें क्या करना है, P से Q को माइनस करना है. अभी जो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था वहां पर जो नंबर था उसमें से P जो मतलब ये P और Q के जगह में वो जो पहले क्वेश्चन में था उसमें यहाँ पर प्लस यहाँ पर 0 था. सो बेस्ड ऑन दैट हमें यहाँ और उस केस में भी जो दोनों नंबर्स थे वो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही दिए हुए थे, बट वो नंबर पॉजिटिव नंबर था, इसीलिए हमने वहां पर कुछ नहीं किया. बट यहाँ पर ये नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन है. सो जो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड का जो रूल यूज किया जाता है, बेस्ड ऑन दैट वी डू नॉट नीड टू गेट द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट नंबर. अगर P और Q दो नंबर्स है और P में से Q को माइनस करना है, फॉर दैट केस अगर P एक नंबर दिया हुआ है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, सो यहाँ पर जो P है इसका हम अगर फिर से किसी भी नंबर n का अगर 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें एक नंबर मिलेगा, मान लें P. ओके, और ओके इसकी जगह कुछ Q लिख देते हैं या ओके. सो इफ वी हैव अ नंबर A और इस नंबर का अगर 2's कॉम्प्लीमेंट करें और हमें B मिले और B का अगर फिर से अगर 2's कॉम्प्लीमेंट कर दें, देन वी विल हैव A अगेन, है ना. ऐसा ही 1's कॉम्प्लीमेंट में भी होता है. 1's कॉम्प्लीमेंट में भी A का 1's कॉम्प्लीमेंट करें और फिर हमें B मिले और फिर B का अगर 1's कॉम्प्लीमेंट करें तो हमें फिर से A मिलेगा. इट इज, यू कैन चेक इट. ओके, तो इन द सेम वे ये जो P दिया हुआ है, फॉर दिस P इट इज ऑलरेडी गिवन इन 2's कॉम्प्लीमेंट. सो वी हैव टू गेट द ट्रू वैल्यू ऑफ P. सो ट्रू वैल्यू ऑफ P को निकालने के लिए वी नीड टू कन्वर्ट this P into the true form. तो पहले से P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, इट इज 1 1 1 सॉरी so already it is 1 1 1 0 1 1 0 and 1. Okay, now what we will do, we will take the 2's complement of P. So what is the 2's complement of P? What is the rule? Rule क्या है 2's complement में कन्वर्ट करने का? एक तो तरीका है कि इसमें इसका 1's complement लें और उसके बाद उसमें 1 ऐड करें. ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है डायरेक्ट करने का, कि हम राइट साइड से चलना शुरू करेंगे. ओके, राइट साइड से चलना शुरू किए तो जो पहला 1 आएगा, राइट साइड से चलना शुरू करेंगे तो जो पहला 1 आएगा उससे उस 1 के बाद जो भी डिजिट्स होगा या जो भी बिट्स होगा, all those bits will get complemented. Okay, so it should be 1, it should be 0 0 1 0 0 0. Okay, is it clear? 2's complement में जैसे 1 0 1 1 0 1 1 0 0. ओके, अगर ये नंबर है और इस नंबर का अगर 2's कॉम्प्लीमेंट करना है, सो व्हाट विल बी द 2's कॉम्प्लीमेंट? मैंने क्या कहा कि राइट साइड से चलना शुरू करेंगे. राइट साइड से चलना शुरू करेंगे, जो भी पहला 1 आएगा उसके बाद के बिट्स का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे. ओके, तो यहाँ पर राइट साइड से चलना शुरू करें तो क्या देखेंगे, वी हैव अ फर्स्ट 1 एट दिस पॉइंट. सो इट शुड बी 0 0. फर्स्ट 1 यहाँ आया, इसके बाद के जो भी बिट्स हैं वो उन सारे का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे. सो वी विल हैव 0 1 0 0 1 0. सर हेलो सर, अगर पहला बीट जो था वो अगर 1 नहीं
रहता, जीरो रहता तो वो एज इट इज जीरो ही रहता। हाँ, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में लिया ना, अभी देखिए ना, इन दिस एग्जांपल 1 ओके 0 सर। 1 0 1 0 1 1 0 0, यहाँ पर मैंने वैसे एग्जांपल लिया है ना, यहाँ पर 2 जीरोज हैं, तो 2 जीरोज को मैंने एज इट इज लिखा, और उसके बाद जो थर्ड बिट 1 है, उस थर्ड बिट 1 के बाद, ओके लेट मी चेंज द कलर, सो दिस इज द फर्स्ट वन विच वी हैव गॉट। अब देखोगे इस 1 के बाद का जो डिजिट्स है वो सारा, इसके बाद का जो बिट्स है, ऑल दोज बिट्स आर गेट कॉम्प्लीमेंटेड। सो ये ऐसा मिला, और इसके बाद 1 0 1 1 0 1 1 0 0, यही सेम एग्जांपल मैंने फिर से लिखा है। तो एक तरीका तो हुआ ये, और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करें। वंस कॉम्प्लीमेंट करें मतलब क्या आएगा, 0 1 0 0 1 0 0 1 1, सो इट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या करते हैं, +1 ऐड करें, तो क्या आता है रिजल्ट, 0 1 1 0, दिस इज 1, this is 0 1 0 0 1 0. So are you able to see this, that both of these are same or not? So both of these are same or not? सेम सर। Same is Yes. So सर same है। yes. So हम एक्चुअली ये जो नंबर है, इस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो एक पहला तरीका क्या है कि सारे बिट्स को वंस कॉम्प्लीमेंट कर दें और उसमें 1 ऐड करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ओके, इंस्टेड ये 2 स्टेप करने के बजाय हम एक ही स्टेप क्या करते हैं कि राइट साइड से चलना शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ। तो जो फर्स्ट 1 आता है, फर्स्ट बिट 1 आता है, उस बिट के बाद के सारे बिट्स का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, देन वी विल गेट द टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी निकाला है इस फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करके, जहां पर कि फर्स्ट बिट 1 था, तो इस बिट 1 के बाद के सारे बिट्स को हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ पी हियर। नाउ द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू बोथ आर गिवन एज इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, बट इन दिस केस पी इज as negative, so we have to do the 2's complement of p so that we can get the true binary form of p. Okay, now we will write q. So what is the value of q here? It is 1 1 1 0 0 1 1 0. Now what we will do, we will add these two numbers. क्या आएगा, 1 1 1 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1, so 1 1 1 1 1। यहाँ पर कैरी कुछ नहीं आया, कैरी यहाँ पर कुछ नहीं आया है ना, सो कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो रिजल्ट आया है, दिस रिजल्ट कंसिस्ट ऑफ 1 हियर, मीन्स जो भी रिजल्ट आया है दैट इज नेगेटिव। ओके, सो जो भी रिजल्ट आया है यहाँ पर वो नेगेटिव रिजल्ट आया है। तो अगर नेगेटिव रिजल्ट आया है तो हमें पूछा क्या जा रहा है, द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज, सो वी विल टेक द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। सो वट एवर द वैल्यू वी हैव गॉट हियर, वी विल टेक द टूज कॉम्प्लीमेंट। सो इसका अगर टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या आएगा, फर्स्ट बिट ही देख रहे हैं 1 है, अगर फर्स्ट बिट ही 1 है तो इसके बाद के सारे बिट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सो 1 1 will become 0. So this is the answer, I think. So A is the, sorry, not A, option B sir। option B is the right answer. Okay, let us move to the next question. Question number 13. The number of bytes required to represent the decimal number this in packed BCD binary coded decimal form. So packed, what is meant by BCD? What is BCD? I think all of you know that what is BCD. BCD is a 4-bit representation of any decimal number. Okay, BCD is what, binary coded decimal. So मान लें अगर 6 का BCD लिखना होगा तो 6 का BCD क्या होगा, मैंने क्या कहा that
BCD is a 4-bit binary equivalent of any digit, any decimal digit. So 6 को अगर 4 बिट्स में लिखना हो तो क्या होगा? So 0 0 1 1 1 0. Okay, so 0 1 1 0 होगा. Now I am telling that write the BCD of 36. What is the BCD of 36? Sir, 0 0 1 1 0 1 1 0. Yes, is it right? यही कहा आपने? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ओके, सो ये होता है. तो मैंने क्या कहा अभी कि BCD जो है, BCD रिप्रेजेंटेशन क्या है? इट इज अ 4-bit बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी डेसिमल डिजिट. तो डेसिमल डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है? आई थिंक ऑल ऑफ यू नो. डेसिमल डिजिट्स, डेसिमल बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस यूनिट्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 1 2 से लेकर 9 9 तक. ओके, सर 9 तक. यस. सो इसका मतलब क्या है कि BCD अगर इसका लिखें, अगर इसका BCD लिखें, दिस इज डेसिमल, और हम अगर BCD लिखें तो BCD भी हम सिर्फ यहीं तक का लिख सकते हैं. 0 0 0 1 0 0 1 0 से लेकर कहाँ तक? 1 0 1. लाइन का जो बाइनरी होगा वो 1 0 0 1 होगा. ठीक है. सो BCD अगर डेसिमल नंबर्स हमारे पास 0 से 9 तक ही बेस है, तो BCD में भी बेस जो है वो 0 से 9 तक ही है. तो सो अब अगर 36 को लिखना होगा अगर BCD में, तो 3 का अलग BCD लिखेंगे और 6 का अलग BCD लिखेंगे. ठीक है. सो ये हो गया 3 का BCD और ये हो गया 6 का BCD. अलग अलग डिजिट्स का अलग अलग BCD रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक डेसिमल नंबर में इतने सारे डिजिट्स हैं, तो अब बताना है कि BCD में कितने सारे बिट्स होंगे. द नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड. ओके, नंबर ऑफ बाइट्स पूछा जा रहा है. तो नंबर ऑफ बाइट्स बताने के लिए पहले हम ये देख लें कि नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा. अगर एक डेसिमल नंबर ये है तो नंबर ऑफ बिट्स कितने लगेंगे इसको BCD में रिप्रेजेंट करने के लिए? BCD में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हर एक डिजिट को हम 4 बिट्स से रिप्रेजेंट करेंगे. तो टोटल बिट्स कितने हो गए? 28. Sir, 28. सर 28. 28 bits, isn't it? Yes sir. Yes sir. Yes, 28 bits. Okay, so हमारे पास जो नंबर है 1 8 5 6 3 5 7, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? इसमें 7 डिजिट्स हैं. अगर 7 डिजिट्स हैं तो 7 into 4 दैट इज 28 बिट्स लगेंगे. अगर इसे अब हम बाइट में लिखें, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बिट नहीं पूछा गया है, नंबर ऑफ बिट्स नहीं पूछा गया, नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड पूछा गया है. तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट 28 आंसर करके आएंगे और बोलेंगे अरे सर तो हम सही करके आए थे लेकिन गलत कैसे हो गया. तो क्वेश्चन पर ध्यान देना है. वी हैव टू से द नंबर ऑफ बाइट्स. तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द नंबर ऑफ बाइट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड? सर 1 बाइट में 8 बिट्स होता है सर. यस इसके यस, साथ सर वेरी गुड. सर 3 या 4 होना चाहिए सर. कितना हो रहा है? सर 4 होगा. सर 3 या 4 में कुछ हुआ हम क्योंकि क्या जानते हैं? कंप्लीट नहीं कर पा रहा है. यस यस यस, हम जानते हैं, I think 6 point हम something. क्या I guess. जानते हैं, 1 bit is equal to 1 bit is equal to Sir, 1 byte equal to 8 bits. 1 Sir. byte. Okay, so 1 bit is equal to कितना बाइट होगा? 1 by 8 बाइट. इसका मतलब है 28 बिट इज इक्वल टू कितना होगा? 28 by 8. कितना हो गया ये? 3.5. 8 3 are 24, 5 बाइट आ रहा है. तो 3.5 बाइट नहीं, क्योंकि हमें टोटल बाइट लिखना है इंटीग्रल फॉर्म में. सो वी विल राइट इट एज 4 बाइट्स. ओके, सो द आंसर शुड बी 4 बाइट्स. हम या तो ऐसा कैलकुलेशन करके लिखते हैं और नहीं तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं, क्योंकि
हर एक डिजिट के लिए 8 बिट है, मतलब 2 डिजिट को मिलाकर कितना हो गया, 1 बाइट यहाँ हो गया, इस 2 को मिलाकर 1 बाइट यहाँ हो गया, इस 2 को मिलाकर 1 बाइट यहाँ हो गया, और एक और मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब तो वी विल हैव टोटल 4 बाइट्स विच आर रिक्वायर्ड। तो इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया। तो आप जस्ट क्वेश्चन को देखकर तुरंत आंसर कर सकते हो, क्योंकि बीसीडी में एक बिट, एक डिजिट 4 बिट्स के इक्विवेलेंट होता है। सो 2 डिजिट 8 बिट्स के इक्विवेलेंट होगा, दैट इज 1 बाइट। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So whoever has given the right answer, so it is a 1 mark question. Previous question was 2 mark question, which was asked in 2008 and 2014. So yes, we have gone through all the questions which are from number system. Okay, up to 2019, because I have not shared here the questions of 2020 and 2021. Okay, so the questions what I have is up to 2019 only. Okay, so let us move to the next chapter, that is Boolean algebra. So we will see the questions of Boolean algebra now. Okay, so this is the portion of Boolean algebra. So Boolean algebra का जो क्वेश्चंस हैं, इनको करने के लिए आपको सबसे पहले बुलियन लॉज जो हैं सारे वो पता होने चाहिए। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा के जो लॉज हैं वो सभी को पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी। So the number of Boolean functions that can be generated by n variables is equal to. So it is a memory-based question and asked in 1990 of 1 marks. So this is the answer: 2 to the power 2 to the power n. So if you have n number of variables, then the total number of Boolean functions that can be generated using n variables is equal to 2 to the power 2 to the power n. जैसे मान लें n is equal to अगर 3 हो, मतलब अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो, 3 वेरिएबल्स मान लें a, b और c 3 वेरिएबल्स है, तो उस 3 वेरिएबल से we can 2 to the power 3 कितना हो गया, 2 to the power 8 मतलब कितना हो गया, 256। 2 to the power 8 256 क्या कर सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। ठीक है ना, बुलियन फंक्शंस लिख सकते हैं। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सभी को याद रखना है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यहाँ पर जैसे जस्ट फॉर्मूला दे दिया, इस तरह के यहाँ वहाँ पे अलग क्वेश्चन रह सकते हैं, जैसे इफ द नंबर ऑफ बिट्स आर गिवन, the number of variables are given, then what will be the answer? So I am leaving this question. Okay, so I will discuss this question later. Question number 3. Okay, so this question, in this question you can see that there is a K-map is given. The K-map for a Boolean function is shown in the figure. The number of essential prime implicants for this function is essential prime implicants. So do anybody knows what is prime implicant and what is essential prime implicants? Can anybody tell me what is a prime implicant and what is essential prime implicant? Anybody? आवाज जा रही है मेरी? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir.
So anybody can anybody tell me that what is prime implicant and essential prime implicant? Nobody. Okay. चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है? जैसे इस के मैप को भी मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। हम एक छोटा के मैप लेते हैं 3 वेरिएबल का। अगर 3 वेरिएबल अगर है एक्सप्रेशन में तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे? अगर पर 8 यस, अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस इन के मैप कितने होंगे? नंबर ऑफ बॉक्स 8. यस, 8 sir. 1 minute, it is got hanged. Okay, so 2 to the power 3 that is 8. तो यहाँ पर 8 बॉक्सेस होंगे। मतलब अगर 3 वेरिएबल हो तो 3 वेरिएबल से हम टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना बना सकते हैं? अगर 3 बिट्स हो हमारे पास, अगर 3 बिट्स हो तो हम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? 8 combination. बना सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से अगर 4 बिट हो तो हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, कि have two horizontal columns। कॉलम में मतलब यहाँ पर सिर्फ हम एक ही वेरिएबल लिख सकते हैं। Yes sir. एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? इन अगर चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और पहले चाह रहा हूँ ऊपर जो हमारे, अगर हम वर्टिकली देखें तो वी हैव 4 कॉम्बिनेशन। अगर वेरिएबल है तो एक वेरिएबल से कितना कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं? अगर एक ही वेरिएबल हो तो या ए का वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दिस यहाँ नीचे हम सी वेरिएबल लिख सकते हैं नीचे और बी को ले रहा हूँ। सो द कॉम्बिनेशन इज 0 0 0 1 1 0 1 1 and 0 and 1। so in SOP, so whatever I am writing in SOP form। okay, sum of product। so for that as we have a downwards, so boxes का नंबरिंग हम करते हैं। so boxes का जो नंबरिंग करते हैं ये बॉक्स 0 होगा। ठीक है, अब 1 कहाँ लिखेंगे? 1 नीचे लिखेंगे या 1 ऊपर लिखेंगे? सर उसके बगल में। सर ऊपर में बगल में। 1 यहाँ लिखें। यस सर, और 2 जो रहेगा वो लास्ट में होगा। ओके, 2 यस सर, पहले 3 4 5 6 and 7। ओके, सो अभी मान लें इस के मैप में जो वंस का फिलिंग है वो वंस का फिलिंग यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, मान लें एक आर्बिट्ररी एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जब हम इस वंस का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? बॉक्स नंबर बताइए, कौन कौन से बॉक्सेस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? सर 3 2 3 5 7 3 7 5 7 3 7 3 यस 7 सर 3 7 भी बनेंगे, ये 3 7 भी 3 7 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना बना सकते हैं? 3 3 तो